بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کا۔ لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا اور آپ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کے والد آپ کے بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ آپ کی پرورش آپ کے دادا آزر کے گھر ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ سے بے حد محبت تھی۔ لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 27 بار آیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین واپس چلے آئے تو آپ نے لوط علیہ السلام کو سدوم بستی کی طرف بھیج دیا۔ یہ تجارتی مرکز اور مسافروں کے لیے آرام دہ جگہ تھی اور یہ قوم کافر تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال دیا اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا ایک ہی گھر پایا۔ یہ لوگ ایسی برائی کرتے تھے کہ ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی تھی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب لوط نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی فحاشی اور بے حیائی کرتے ہو جو جہانوں میں کسی شخص نے پہلے نہیں کی۔ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے حاجت پوری کرتے ہو؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ بہرحال لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم جہاں والوں میں سے مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوط کا ذکر کر جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے کے پھر بھی تم بدکاری کرتے ہو؟ یہ کیا بات ہے تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی نادانی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا زیادہ ذکر کیا ہے، انہیں کافر، مجرم، جاہل اور حد سے بڑھنے والا کہا ہے۔ یہ تمام برائیاں ان میں موجود تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوط کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی فحاشی کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ کیا تم مردوں کے پاس یہ بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستوں میں ڈھاکہ ڈالتے ہو اور مجالس میں نہایت برے کام کرتے ہو؟ یہ لوگ بھری مجلس میں برے کام کرتے تھے، مثلا سب کی موجودگی میں زوردار آواز میں ہوا خارج کرتے تھے، پھر اپنی اس حرکت پر ہنستے تھے، اور تمام برائیاں ان میں موجود تھیں۔ لوط علیہ السلام ان کو ہر دفعہ سمجھاتے رہے، وہ آپ کو جھٹلاتے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قوم لوط نے پیغمبر کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے، میں بلا شبہ تمہاری طرف امانت والا پیغمبر ہوں۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس کام پر میں تم سے اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لوط علیہ السلام دعوت دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس اس کی قوم کا جواب یہی ہوتا کہ اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ اور قوم عاد اور قوم سمود نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا، انہوں نے کہا اے قوم اللہ کی پکڑ اور عذاب سے بچ جاؤ، اور اس کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن وہ ڈرانے والوں سے بھی جھگڑتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کی قوم سے جواب نہ بن سکا اور آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو بستی سے نکال دو، یہ پاک باز بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ
वहां कोई शख्स पाक ना था। सब के सब गिलाजत में डूबे हुए थे। और उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम को अपनी बस्ती से निकालने का फैसला किया और कहने लगे, ए लूत, अगर तू अपने इस वाज नसीहत से बाज ना आया तो जरूर तुझे निकाल दिया जाएगा। और लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं भी तुम्हारी इस घिनौने अमल से बेजार हो चुका हूं। और लूत अलैहिस्सलाम वहां से गए और अल्लाह से दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे अहल को उनके अमल से बचा ले और निजात अता फरमा। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और फरिश्ते भेजे। जिब्राइल, मीकाइल और मलकुल मौत को अल्लाह ने भेजा। फरिश्ते सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए ताकि उसे इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत दें, और उसके बाद फरिश्ते बस्ती सदोम की तरफ लौट गए। और फरिश्ते नौजवान मर्दों की शक्ल में वहां पहुंचे और उनके पास से गुजरे ताकि उन्हें आजमा लिया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनसे कहा था कि उन लोगों को उस वक्त तक हलाक ना करना जब तक कि उनके नबी को उन पर इल्जाम लगाता ना देख लो। और ये फरिश्ते बस्ती के किनारे पहुंच गए। लूत अलैहिस्सलाम की एक बेटी बस्ती से बाहर किनारे पर रहती थी। जब उसने उन्हें देखा और डर गई, उसने सोचा हमारी कौम के लोगों ने अगर उन्हें देख लिया तो जरूर उनसे बुराई करेंगे। इसलिए वो अपने वालिद लूत अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ी। उनके पास पहुंचकर कहने लगी, मैंने चंद नौजवान लड़कों को देखा है और मैं उनके बारे में खौफजदा हूं। लूत अलैहिस्सलाम जल्दी से उनकी तरफ आए। उनसे पूछा, आप कैसे आए हैं? उन्होंने बताया, हम आपके मेहमान हैं। लूत अलैहिस्सलाम चाहते थे उन्हें बाहर ही से दूसरी तरफ रवाना करें, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम मेहमान हैं तो वो उन्हें जाने का ना कह सके और उनसे बोले, अल्लाह की कसम, जमीन की पुष्ट पर उनसे खबीस और गंदी कौम हमने नहीं देखी। ये सुनते ही वो सब लूत अलैहिस्सलाम की तरफ लपके। अल्लाह ताला फरमाता है, लोग जल्दी से उसकी तरफ लपके और वो उससे पहले फहाशी के आदी बन चुके थे। ये लोग घर के सामने पहुंच गए तो लूत अलैहिस्सलाम उन्हें रोकने के लिए घर से निकले। उनसे फरमाया, ए मेरी कौम, तुम्हारी ख्वाहिश के लिए मेरी बेटियां मौजूद हैं, यानी कौम की औरतें मौजूद हैं। और उन्होंने जवाब दिया, लूत, तू चाहता है तेरी बेटियों यानी कौम की औरतों से हमें दिलचस्पी नहीं, जो हम चाहते हैं तुम्हें मालूम है। लूत अलैहिस्सलाम कहने लगे, काश मेरे पास कुव्वत होती या मैं किसी मजबूत पनाह में होता। लूत अलैहिस्सलाम पर सिर्फ उसकी बेटियां ईमान लाई थीं और उसकी बीवी भी काफिर थीं, और बस्ती के लोगों ने आपको तबलीग करने से भी रोक लिया था। और अब उन लोगों ने घर में दाखिल होने की कोशिश की और लूत अलैहिस्सलाम ने उन 3 मेहमानों की तरफ देखा। आप उनके लिए फिक्रमंद थे और आप ये देखकर हैरान हुए कि वो तीनों बेफिक्र बेटे थे। और आखिर फरिश्ते कहने लगे, हम तेरे पास वो फैसला लाए हैं जिसमें इस कौम को शक था, और हम तेरे पास हक लेकर आ चुके हैं, और बेशक हम सच्चे हैं। जैसा कि सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला फरमाता है, फरिश्तों ने कहा, ए लूत, ना डर और गम ना कर, यकीनन हम तुझे और तेरे अहल को और सिवाय तेरी बीवी के निजात देंगे, और वो पीछे रह जाने वालों में से होगी। हम इस बस्ती वालों पर इन गुनाहों के सबब आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं। और कहा, ए लूत, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग तुझ तक ना पहुंच पाएंगे, यानी तुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकेंगे। फिर उनमें से एक शख्स ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की,
जिब्रील उठे, उन्होंने एक ऐसी ज़रब लगाई कि तमाम के तमाम ऊंधे हो गए। अल्लाह ताला फरमाता है, उन्होंने लूत को उसके मेहमानों के बारे में फुसलाने की कोशिश की तो हमने उनकी आंखें मिटा डाली। सूरह कमर में अल्लाह ताला फरमाता है, बस मेरा अजाब और डराना चको। वो धमकियां देने लगे और वापस जाने लगे और कहने लगे, हम तुझसे कल निमट लेंगे। उस वक्त फरिश्तों ने कहा, यकीनन उनके वादे का वक्त सुबह का है, और क्या सुबह बिल्कुल करीब नहीं, सुबह तक उन्हें मोहलत मिल गई। और फरिश्तों ने कहा, ए लूत, अपने अहल को रात के हिस्से में लेकर निकल जा और उनके पीछे पीछे तू चल, और तुम में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे, और जहां तुम्हें हुक्म हो चले जाओ। और हमने उसे वो फैसला सुना दिया कि सुबह होते ही इस कौम की जड़ काट दी जाएगी। जैसा कि सूरह शुअरा में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने उसे और उसके अहल को निजात दी, सिवाय उसकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से थी। और सूरह कमर में अल्लाह ताला फरमाता है, तमाम हलाक हो गए सिवाय लूत की आल के, उन्हें हमने सुबह सहरी के वक्त निजात दी। ये हमारा एहसान था और इसी तरह हम शुक्रगुजारों को बदला देते हैं। बहरहाल लूत अलैहिस्सलाम अपनी 2 बेटियों के साथ निकल गए और सुबह सवेरे अजाब आया। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम मेरे अजाब का मजा चखो। और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना पर जमीन के नीचे दाखिल किया और उस बस्ती को उखाड़कर आसमान की तरफ ले गए और फिर जमीन पर दे मारा। और सूरह हूद में अल्लाह ताला फरमाता है, जब हमारा हुक्म आया तो हमने उसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे किया और उन पर कंकरीले पत्थर बरसाए जो तेरे रब की तरफ से निशानदार थे। सूरह हिज्र में अल्लाह ताला फरमाता है, रोशनी होते ही उन्हें बड़ी जोर की चीख ने पकड़ लिया, फिर हमने उसका बुलंद हिस्सा नीचे किया और उन पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। और सूरह शुअरा में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने उन पर एक खास किस्म का मी बरसाया, बस बहुत ही बुरा मी था जो डराए गए लोगों पर बरसा। ये माजरा भी सरासर इबरत है, उनमें से भी अक्सर मुसलमान ना थे। बेशक तेरा परवरदिगार वही है, गलबे वाला, मेहरबानी वाला। और सूरह नजम में अल्लाह ताला फरमाता है, और उसने उल्टाई हुई बस्तियां गिरा दी, फिर उसको उस चीज से ढांपा, उन पर पत्थरों की बारिश कर दी। इस तरह ये बस्ती तहस नहस हो गई और उसके निशानात क़यामत तक के लिए छोड़ दिए गए। इन निशानात को इसलिए बाकी छोड़ा गया कि तमाम लोग उसे देखकर इबरत हासिल करें।